کیسے ہوتا ہے. کیا نام ہے شروع کیا جائے پھر مارٹی. یہ ہمارے اس کا سیریز چالو کر دیں کیا ایک سے لٹریچر کا سیریز چالو لٹریچر یو پی پی ٹی بھی آ جائے گا اور یہ ہمارے ٹی جی ٹی پی جی ٹی لٹریچر. کیا فین سے لگے کہیں. ایک منٹ بند کر دے رہے جب تو ہے رکی گھوم جا رہے. نہیں سنا اور بڑھیا ہے گرو جی سمیت سر. ایسے بڑھیا ہے سر. ارے فارم ڈالنا ہے کہ نہیں. ایسے سر. وہی کے وی ایس والا ہے پیٹرن. اوکے سر. آپ کا میں تو بھی صحیح ہے آپ کے لیے تو اور ریزننگ وغیرہ بھی آپ کا صحیح ہے. کیا سر آتے ہیں. ہاں ہاں ریجنگ سر وجنگ ہے مار دیں. انٹر سر انٹر تک کا میں ریڈنگ وہ تو سب آتی ہے سر. ارے ہلو آپ ہاں ہاں آئے گی. ہلو ہاں بولیے. ہلو بولیے ہاں راکیش سر بولیے. سر فاروق تو میں نے فل کر دیا ہے ای ایم آر ایس والا. پی جی ٹی کا. ہاں سر بھر دیا ہے. تو بھرنے میں پڑھیں گے تب نا آپ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہے جب تک فل پی کر جی ٹی دیا ہے. سیلبس ہے. سلیبس بھرنا پڑھنا پڑے گا نا یہ جالیے ٹی ہاں جی ہاں ٹی سے اس میں کچھ نہیں ہے. ٹی جی ٹی سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک پی جی ٹی نہیں پڑھیں گے تب تک کوئی. سر وہ پڑھ سر ارے اس کو اسٹارٹ کرو آئیے گا سر آپ. ہم تو پڑھا ہی رہے اسٹارٹ ہی سے پڑھا رہے ہیں 4 بجے چل رہا ہے. سبھی 4 چل بجے رہا ہے جان ای ایم کسی آر سے. سر ای ایم آر پر چل رہا ہے 4 بجے کا. وہی چل رہا ہے وہی سیلیبس سب ایک کا ہے یہ ہمارے ٹی جی ٹی پی جی ٹی سب سیلیبس ایک ہے. پی جی ٹی کا پی جی ٹی کا یو پی ٹی جی ٹی پی ٹی بھی ہوئی تو یہاں چل ہی اوکے رہا ہے وہاں سے رات کو شیکسپیئر چل رہا ہے یہ سب آئے ہوے شیکسپیئر بھی آئے گا ہم سمجھے 3 رائٹر لے کر چل رہے ہیں آپ کا دیکھیے رات کو شیکسپیئر چل رہا ہے. 3 بجے ورسور چل رہا ہے یہ دونوں آئیں گے تیسرا میں جان کس ختم کرنے والا ہوں 3 رائٹر ایک ساتھ لے کر چل رہا ہوں کیا چاہیے ہم تو لے کر چل ہی رہے ہیں. اور ٹی جی ٹی پی جی ٹی کا دونوں کا یہ ہمارے کا سیلیبس ایک کا ہے. دھیان رکھیے ابھی ہم ہی نہیں بھرے ہیں. تھوڑا سمیت سر آپ لوگ تھوڑا پیسہ ویسا ٹیسٹ کر دیجیے بھائی ہم لوگ کو بھی اب کیا ہوتا ہے. تھوڑا ہم لوگ بھی پریشانی تو اوکے سر. اب کیا کہیں یوٹیوب پہ جائے گا کیا زیادہ بولے لیکن اب کر دی اپنے حساب سے زیادہ کرتے نہیں تھوڑا. ارے آج نہیں تو کل کرنا ہے کر دیجیے تھوڑا ضرورت ہے تب میسج لکھتا ہوں نہیں تو نہیں لکھتا ہوں جانتے ہیں آپ اس سمے فی الحال کچھ آپ لوگ جانے تھے بیچ میں ہم نے کوچنگ وغیرہ تھوڑا بند بھی کر دیا تھا نا میرے گھر کام اتنا خرچہ ہو گیا ہے نا اب لوگ کیا ہوتا ہے اس لیے. تو آج ایکسرسائز چیپٹر نمبر کون سا چل رہا ہے چیپٹر نمبر بس آ گئے. ایک منٹ چیپٹر نمبر 18 سے پہلے آنا ہے. چیپٹر نمبر 17 کے بعد ہے نا. انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہو گیا آپ کا یہیں سے نا دیکھیے صحیح ہے نا. یس سر. ڈسٹریبیوٹیو پروناؤن ہوتا ہے کہہ رہا ہے وبھاگ سوچک سرونام ہوتا ہے وبھاگ بانٹتا ہے اس کے اندر ایچ آتا ہے
आइदर आता है, नाइदर आता है, और इधर अकेला वर्ड आता है, इसके तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आता है, आप वगैरह आएगा, और एक अकेले रहता है, ठीक है। अगर इसके बाद तुरंत नाउन आ जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे दिया है ईच ऑफ बॉयज गेट्स अ प्राइज, मतलब लड़कों में से प्रत्येक ने प्राइज पाया। तो आप देखिए नाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट है, नाउन ऑफ प्रोनाउन का। तो देखिए प्रोनाउन हो गया और आप हो गए, नाउन हो गया। तो प्रोनाउन ऑफ नाउन का कॉन्सेप्ट है, तो नाउन ऑफ नाउन है, प्रोनाउन ऑफ प्रोनाउन को, तो आपके कॉन्सेप्ट में जो पहले नाउन ऑफ प्रोनाउन होता है उसके अनुसार वर्ब लगती है। तो ईच की बात किया गया प्रत्येक की ना, तो यहाँ पे ईच गेट्स हो जाएगा कि नहीं, वर्ब सिंगुलर हो गया। अब प्राइज प्रत्येक लोग। अब यहाँ पूछा जाएगा ईच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, आप क्या है प्रीपोजिशन, बॉयज क्या है नाउन है, गेट्स क्या है वर्ब, प्राइज क्या है नाउन है। चलिए आगे देखिए, ईच ईच टू इट इन, ईच यहाँ पर क्या है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, मतलब प्रत्येक नहीं, यहाँ प्रोनाउन है, टू क्या है वर्ब है, इट क्या है प्रोनाउन, इन टर्न, मतलब प्रत्येक लोगों ने इसमें टर्न लिया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। आइदर ऑफ दीज रोड्स, मतलब इन रोडों में से कोई एक, आइदर ऑफ दीज रोड्स मतलब इन रोडों में से कोई, लीड्स द रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन में जाता है, कोई एक है जो। तो देखिए आइदर आप होता है एक बार है, तो इसके अनुसार वर्ब लगती है, तो यहाँ इसको सिंगुलर माना जाएगा, तो यहाँ वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। आइदर आप यू कैन गो, आप में से कोई एक जो है कैन को जा सकता है, कोई भी जा सकता है, तो आइदर का प्रयोग किया गया। आइदर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, आप प्रीपोजिशन, यू प्रोनाउन है, कैन मॉडल वर्ब, गो आपका मेन वर्ब। अब इसमें वही समझाया गया है जो हम बताना चाहेंगे, वो इसमें दिया है। ईच आइदर नाइदर को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोला जाता है, ईच आइदर नाइदर को, बिकॉज दे रेफर अ पर्सन एंड थिंग्स वन वन, जो रेफर करते हैं वे रेफर करते हैं पर्सन और थिंग्स को वन एट टाइम, एक टाइम में। फॉर दिस रीजन दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड सच, यही रीजन है कि दे आर ऑलवेज हमेशा सिंगुलर होते हैं, ईच सच फॉलो बाय द वर्ब इन द रिंग, और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है। ये ऐसे वर्ब में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, प्रत्येक की बात किया जाता है फटनी के बाद, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। Each used to denote यूरी वन ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन थिंग्स टेकन, इच का यूज किया जाता है कहाँ पर, यूरी वन ऑफ द नंबर, मतलब प्रत्येक की जब बात हो, प्रत्येक पर्सन की बात हो, प्रत्येक चीज की बात होती है, उस समय इसका प्रयोग किया जाता है प्रत्येक के सेंस में। जैसे आइदर मीन्स होता है वन आर टू। आइदर का मतलब क्या होता है, आइदर का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई एक हो या अदर आप दो, या दूसरा हो, एक दो के लिए, जब जो कोई चीज दो होता है, दो के लिए, दो में से एक के लिए आइदर का प्रयोग किया जाता है। नाइदर का मतलब क्या होता है, नॉट इन द दो, तो दो में से कोई ना हो, तो जब कोई चीज दो हो और दो में से कोई नहीं होती, उस सेंस में नाइदर का प्रयोग किया जाता है। यह निगेटिव, यह आइदर का निगेटिव होता है। नाइदर जिस वर्ड में लगा है सेंटेंस में, उसमें निगेटिव वर्ड और नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये खुद निगेटिव वर्ड है। Hence, either neither should be used only the speaking of two person thing, क्योंकि कहा जाता है कि आइदर नाइदर का प्रयोग जब दो पर्सन और थिंग के लिए किया जाए, जब दो चीजों, दो से ज्यादा न हो। When more than two are spoken, anyone, अगर दो से ज्यादा लोग होते हैं तो उसके लिए एनी का प्रयोग करते हैं, नो वन के रूप में, नन का। अगर वही नाइदर का मतलब अगर वही दो से ज्यादा होंगे तो एनी का प्रयोग करेंगे, नो वन और नन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आवाज जा रही है, हेलो हेलो, आ रही है बस। द पोजीशन ऑफ द प्रोनाउन इज शुड बी नोटिस। अब इसलिए हम नोटिस करेंगे प्रोनाउन का पोजीशन क्या। आपकी बुक में थोड़ा हाईलाइट बोल्ड वगैरह में भी लिखा है, मेरे पीडीएफ में सब एक ही तरह का है। इट में है थ्री पोजीशन, इसके तीन पोजीशन होते हैं, मतलब करे प्रोनाउन की पोजीशन जो होते हैं, हम इसको नोटिस करेंगे, इसके तीन पोजीशन होते हैं। जैसे ईच ऑफ मेन रिसीव्ड अ रिवार्ड, यहाँ पर भी ईच क्या है, प्रोनाउन है।
करे मैन में से प्रत्येक ने रिवार्ड को रिसीव किया, ठीक है। ईच ऑफ दीज हॉर्सेस, घोड़ों में से प्रत्येक ने कास्ट 5000, प्रत्येक की कास्ट क्या है 5000 रुपीज है। यहाँ पर बीच है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, आई बाट ईच ऑफ दीज मैंगो फॉर 3 रुपीज, मैंने खरीदा इन मैंगो में से प्रत्येक को 3 रुपीज में। तो तीनों में ईच क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ध्यान रखिए, बस स्थान को चेंज किया है। इसमें देखिए यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। कौन सी प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक ना। ठीक, यहाँ देखिए 5000, यहाँ पर 5000 थाउजेंड्स नहीं होगा, 5000 ही होगा। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव बन गया है यहाँ। 5000 एडजेक्टिव, रूपी क्या है, नाउन है रूपी, ये प्लुरल होगा, इसको प्लुरल नहीं कर सकते 1000। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। 3 क्या है, एडजेक्टिव है। दीज मेन रिसीव्ड ईच अ रिवार्ड, एक, अब देखिए दीज मेन ईच अ रिवार्ड, यहाँ पर भी ईच का स्थान है। यहाँ पर देखिए पहले में स्थान किसका था, प्रोनाउन का काम कर पोजीशन ऑफ प्रोनाउन इज शुड बी नोटेड। पहले में इसका ऐसे इसका काम कर रहा था। दूसरे में देखिए दीज मैन रिसीव्ड ईच अ रिवार्ड, ये मैन ने रिसीव किया ईच अ, प्रत्येक ने रिवार्ड रिसीव किया। तो यहाँ पर भी प्रोनाउन ही है, ईच में तो प्रत्येक ने, अब स्थान बस चेंज किया दिया गया है, ठीक ना। इसमें बताया गया है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए कहाँ पर क्वेश्चन है, हाँ देखिए दीज मैन रिसीव्ड ईच अ रिवार्ड, कर इन आदमी, ये आदमियों में से प्रत्येक ने रिवार्ड। तो यहाँ पर भी ईच क्या है, एडजेक्टिव है। दीज हॉर्सेस कास्ट ईच 5000, इसमें प्रत्येक हार्स की कीमत ईच प्रत्येक की 5000 रुपीज। तो यहाँ पर दीज हार्स कास्ट ईच, एक हार्स ईच की कीमत कितना, 5। यहाँ पर भी प्रोनाउन है। दीज हार्सेस कास्ट 5000 रुपीज ईच, यहाँ पर भी इसी, यहाँ पर भी प्रोनाउन, बस स्थान को चेंज कर लिया है। देखिए कैसे कैसे स्थान चेंज किया। द थर्ड ऑर्डर टू सेंसुअल आफ्टर न्यूमरल, वी डू नॉट से द मैन रिसीव, ऐसे नहीं कर सकते आदमी ने रिसीव किया रिवार्ड ईच प्रत्येक को, बट वी से, लेकिन ऐसा कर सकते द मैन रिसीव्ड 500 रुपी, द मैन रिसीव्ड 500 रुपी ईच। तो प्रत्येक आदमियों ने, प्रत्येक ने क्या किया, 500 रुपीज किया, ये कह सकते। लेकिन ऐसे नहीं कि आदमी ने रिसीव किया एक और रिवार्ड, एक ही रिवार्ड को प्रत्येक ने, तो एक ही जब रिवार्ड आएगा तो प्रत्येक कैसे पाएंगे, ये नहीं बोलेंगे। ये बोलते मैन रिसीव्ड 500 रुपीज ईच, प्रत्येक ने 500 रुपीज, तो प्रत्येक की बात है। लेकिन ये मैन रिसीव्ड रिवार्ड, एक रिवार्ड ईच, प्रत्येक ने, कैसे एक ही रिवार्ड है तो प्रत्येक लोगों ने। थोड़ा सा बारीकी है इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा सब में यह कौन सा प्रोनाउन है, सब में प्रोनाउन ही है, छटनी का भाव कर रहा है। Each of the following sentence, each, either, neither are used adjective, कर है कि each और either neither का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। मैंने बताया ना कि each either neither का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, बस क्या करता है तुरंत नाउन के बाद आ जाता है, ये ठीक ना। चलिए देखते हैं, जैसे दे आर फॉलो बाय नाउन सिंगुलर नंबर, जैसे ईच बॉय टुक हिज टर्न, मतलब कह रहा है ईच बॉय ने अपना टर्म लिया। तो यहाँ बॉय क्या है, नाउन है, यहाँ पर ईच एडजेक्टिव हो जाएगा। टुक वर्ब है, हिज टर्म, अब देखिए प्रत्येक की बात क्या है, तो यहाँ लड़का है तो हिज लगेगा। टर्न क्या है, टर्न नाउन है। देखिए नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी एक्यूजेशन सही नहीं, तो एक्यूजेशन नाउन है, नाइदर यहाँ एडजेक्टिव लग गया। ट्रू क्या है, एडजेक्टिव है। At either end was marble statue, at either end was marble statue, ये क्या है सेंटेंस। हेयर आइदर मतलब ईच आर बोथ की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बुक में देखें, कह रहा है कि
146. हाँ देखिए कह रहा है कि एट आइदर इंड वाज अ मार्बल स्टेच्यू, एट आइदर इंड वाज। तो देखिए इसमें कैसे लगेगा, इस सेंटेंस को उल्टा कर दिया गया, ए मार्बल स्टेच्यू वाज एट द इंड होना चाहिए, इस तरह इसको लिख सकते हैं, अ मार्बल स्टेच्यू वाज एट ईदर इंड। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टेच्यू नाउन है, मार्बल एडजेक्टिव है, वाज वर्ब, इंड भी नाउन है, आइदर यहाँ एडजेक्टिव है, आइदर यहाँ एडजेक्टिव है, एट क्या है, एट आपका प्रीपोजिशन है। स्टडी द फॉलोइंग, कुछ सेंटेंस का अध्ययन करिए। जैसे दिया है द टू मेन हेट इच अदर, मतलब दो आदमी एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, दे चीटेड वन, वे एक दूसरे से, अब वन अनदर। तो ध्यान रखिएगा इच अदर और वन अनदर, एक कोई प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, परस्पर सूचक। तो देखिए इसमें दो ही वर्ड आता है, ईच अदर और वन अनदर, दो ही वर्ड आता है। ईच अदर का प्रयोग जब दो की बात हो तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक होगा तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। कभी कभी फिक्स नहीं होता कि दो हैं कि दो से ज्यादा, तो भी वन अनदर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे टू मेन हेट, यहाँ दो आदमी की बात की गई तो यहाँ ईच अदर लगेगा। दे चीटेड वन, वे एक दूसरे को धोखा, अब वे मतलब दो लोग वो भी हो सकते, दो से ज्यादा भी, लेकिन क्लियर नहीं तो भी वन अनदर होगा। अब वन अनदर क्या है? ईच अदर, यह प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। जैसे देखिए द टू मेन हेट ईच हेट्स वन अदर, टू मेन हेट मतलब दो आदमी हेट करते, ईच हेट्स द अदर, एक जो है दूसरे से करता है। यहाँ देखिए टू मेन, मेन क्या है? नाउन है, टू क्या एडजेक्टिव है, हेट क्या है? वर्ब है। ईच हेट्स, ईच यहाँ पर प्रोनाउन है और हेट्स क्या वर्ब है, तो अदर क्या है? तो यह भी प्रोनाउन है। बड़ी दिक्कत, देखिए कैसा सेंटेंस दिया, कह रहे कि द टू मेन हेट मतलब दो आदमी घृणा करते हैं। हैं? नहीं नहीं, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। कौन प्रोनाउन है? यस सर, ये भी प्रोनाउन है। देखिए सॉरी, द अदर है ना दूसरे को, तो यहाँ पर जो है इट हेट द अदर, द अदर दूसरे को, किसको? दूसरे को। यहाँ पर थोड़ा सा सर क्या कह रहे हैं बताइए? लगा हुआ है ना, एक मिनट, देखिए बुक में क्या दिया, द क्या कह रहे हैं? द लगा हुआ है ना, तो जब द लग गया तो नाउन बन जा रहा है। ये सर प्रोनाउन रहता नहीं था अलग करके। तो इसका ये प्रोनाउन नाउन बन गया। क्या है कि एनालिसिस दे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब समझा, द टू मेन हेड मतलब दो आदमी घृणा करते, ईच हेड से दूसरे, एक दूसरे, ये सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब कि दो आदमी घृणा कर रहे, पहले वाले सेंटेंस, एक जो होता है दूसरे से घृणा कर रहा है, इस सेंस बता रहा है इस सेंटेंस का, ठीक है? ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस को एनालिसिस कर रहा है तो करे दो आदमी हेड कर रहे हैं एक जो है दूसरे से, तो यहाँ पर अदर आपका नाउन हो जाएगा, इच जो है प्रोनाउन ही है, इसका सेंस है। अब इसी के दो चीटेड वन अदर, इसका मतलब दे चीटेड कर रहे लेकिन वन चीटेड अदर, एक दूसरे को कर रहा है, एक जो है दूसरे को कर रहा है, तो दूसरा एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये सेंस निकल रहा है। प्रोनाउन है, कौन? प्रोनाउन है, वन भी प्रोनाउन है, वन भी प्रोनाउन है, एन अदर भी प्रोनाउन है। इसमें थोड़ा द लगने के कारण नाउन बन जा रहा है, बस, और कोई दिक्कत नहीं। यस सर। फिलहाल बहुत बारीकी है, ध्यान रखिएगा। ईच अदर ईच एंड वन रियली बिलोंग टू सब्जेक्ट, एच और वन दोनों बिलोंग करते सब्जेक्ट को। अदर एंड अनदर आर ऑब्जेक्ट, अदर और अनदर ऑब्जेक्ट होते हैं, अदर कहीं प्रयोग होता है, अनदर तो ऑब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ईच एंड वन जो होता है
सब्जेक्ट होता है। कहीं पर ईच लगा, जैसे यहाँ पर वन लगा है और यहाँ ईच, ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन अदर और इन अदर क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बराबर समझ। बट ईच अदर एंड वन अदर बिकम कंपाउंड। कह रहा है कि ना जो ईच है और जो वन सब्जेक्ट बन रहा है और अदर और इन अदर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये कह रहा है। और लेकिन ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो इसका मतलब तब रेसिप्रोकल प्रोनाउन बन जा रहा है, ठीक है। जो सेपरेट होते हैं, रियली सेपरेट इवन बाय प्रीपोजिशन के द्वारा सेपरेट होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इससे द ब्रदर्स क्वेरल विथ ईच अदर, जो भाई जो हैं एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, तो इसमें प्रीपोजिशन से सेपरेट हो जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। अब विथ ईच अदर, एक दूसरे से, विथ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दे आल गिव एविडेंस अगेंस्ट एन अदर, कह रहा है कि ना एक सेपरेट प्रीपोजिशन के द्वारा अलग भी हो जाते हैं, ये अलग होते हैं रेयरली सेपरेटली, कभी कभी रेयरली इवन बाय प्रीपोजिशन अलग होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द ब्रदर क्वेरल ईच अदर, जो भाई जो थे एक दूसरे से झगड़ा किए। कह रहा है दे आल गिव एविडेंस अगेंस्ट वन, वे लोग क्या किए, एक दूसरे के विरुद्ध दिए। तो अगेंस्ट भी प्रीपोजिशन है, विथ भी प्रीपोजिशन है, ध्यान है। और ईच अदर वन अदर ये आपको पता है कि प्रोनाउन ही है। तो एक कंपाउंड प्रोनाउन हो गए, कह रहे कि वन टाइम रूल ईच अदर शुड बी यूज स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन। कह रहे कि वन टाइम यूज होता है वन अदर, तो सॉरी ईच अदर, तो इसका मतलब होता है टू पर्सन के लिए या टू। ईच अदर का प्रयोग दो वस्तुओं के लिए किया जाता है, दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और वन अदर स्पीकिंग टू मोर देन, लेकिन वन अदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। लेकिन कह रहा है कि वन अदर स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू इन नो लॉन्गर स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि एकदम ऑब्जेक्ट ही करे, कभी कभी ऐसा होता है इसमें रूल में एक्सेप्शन भी हो जाता है। कहने का मतलब स्पष्ट लिंक नहीं कि वन अदर का प्रयोग टू या मोर देन दो ही के लिए किया जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिट भी हो जाता है। जैसे देखिए दिया है द थ्री ब्रदर्स क्वेरल विथ ईच अदर, यह लेकिन देखिए एक इडियम है कि तीन भाइयों ने एक दूसरे से झगड़ा किया। तो तीन भाई का मतलब ये है कि दो भाई एक तरफ रहेंगे, एक भाई एक तरफ, ये भी सही है। लेकिन यह क्या है, यह एक्सेप्टेड इडियोमेटिक है, मतलब एक प्रकार का मुहावरा है, तो इसको माना गया है। फिलहाल आपको पता है कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, वन एंड का प्रयोग दो से अधिक के लिए, ठीक ना, ये होता है। चलिए अब आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ठीक ठाक होता है, शुरू किया जाए, कुछ बताएंगे लेकिन बड़ा चैप्टर है, कुछ कल देखा जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन इज द फॉलोइंग पेयर को पढ़िए। आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न। अब इसको क्या है, दो सेंटेंस, तो दो सेंटेंस को जोड़ करके एक बनाया जाएगा। तो ठीक, फिर आई फाउंड अ पेन, आई लास्ट अ पेन, हियर इज द बुक, यू लेंट मी द बुक। अब ये सेंटेंस है, इसको जोड़ा जाएगा। लेट अस नाउ कंबाइन द ईच ऑफ द पेयर्स इन द वन सेंटेंस, कि सेंटेंस को पेयर करके एक बनाना, अलग अलग सेंटेंस देखिए इसको एक। जैसे आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न, हमने क्या, मैंने हरी से मिला जो अभी जस्ट रिटर्न हुआ था। देखिए क्या करना था, वो कुछ नहीं कहा। यहाँ देखिए हरी, एक हरी को हटा करके यहाँ हु लग गया और कुछ नहीं, मतलब एक नाउन को, हरी नाउन है, नाउन को हटा करके हु लगा प्रोनाउन। ये कौन सा प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे देखिए आई है फाउंड द पेन विच, अब एक पेन दो थी यहाँ पर, एक पेन हटा करके यहाँ विच लग गया है बस सेंटेंस में, और पूरी स्टॉप हटा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए तो विच ये क्या है, एक्चुअली बोला था रिलेटिव प्रोनाउन है और इसको कंजक्शन भी बोला जाएगा। देखते हैं हम लोग, हियर द बुक दैट यू लेंट मी, करे यहाँ वह बुक है, दैट यू जो तुमने उधार लिया था, जो तुमने मुझसे उधार लिया था। तो यहाँ पर भी दैट क्या है, कंजक्शन रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए नाउ लेट अस एग्जामिन द वर्ड डन बाय ईच अदर इज हु, देखिए हु लगता है विच और दैट, ये क्या कर रहे हैं, ये वैसे वर्ड है जो डन वर्क को कर रहे हैं, मतलब इनका प्रयोग किया गया है। जैसे दिया द वर्ड
دا वर्ड हु का यूज किया गया पहले सेंटेंस में हरी की जगह, जो मैंने बताया, जो प्रोनाउन वर्ड का प्रोनाउन जो प्रोनाउन का काम कर रहा है, हरी क्या हु क्या प्रोनाउन का काम कर रहा है। दूसरे में जो है हु ज्वाइन द कंटेक्ट टू स्टेटमेंट डज द वर्क ऑफ द कंजक्शन। और ध्यान रखिएगा, अब जैसे हु वहां पर जो है हरी को जो है वो कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो द वर्ड करे वह शब्द जो ज्वाइन करता है या कनेक्ट करता है दो स्टेटमेंट, ऐसा शब्द हो जो वर्ड ऐसा शब्द हो जो क्या करता है, दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ अ कंजक्शन, तो यह उस कंजक्शन का काम करता है। अर्थात कहने का मतलब हु विच दैट क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। द वर्ड हु देयरफॉर यूज डबल वर्क एंड वर्क ऑफ प्रोनाउन एंड। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हु जो है या विच तो दैट वो किसका कार्य कर रहे हैं, डबल वर्क कर रहे हैं, प्रोनाउन का भी काम कर रहे हैं और कंजक्शन का भी काम कर रहे हैं। ध्यान, रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं कहा जाता है, कंजक्शन भी कहा जाता है, ठीक। बुक द केरिन मार्टिन कर रहे हैं, हम नहीं कहे। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वी माइट देयर, इसलिए इसे कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, विच हु हुम दैट जो होता है इसे कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंजक्शन का भी काम करते हैं प्रोनाउन। इट भी कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन, से रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, बिकॉज रेफर इन क्योंकि रिलेट करते हैं। कैरी द बुक बैक सम नाउन गोइंग बिफोर एयर द हरी विच इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। और उसके पहले जो जो हुम विच आता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है या जो कंजक्शन आता है, उसके पहले जो नाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, अधिकतर नाउन ही आता है, उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं। जो कंजक्शन हुम विच आएगा उसके पहले एक वर्ड आएगा नाउन, उसे नाउन या प्रोनाउन, उसे एंटीसीडेंट भी कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। लेट द पीपल पीपल शो वाई विच इज दैट इन द रिलेटिव। इस तरह से क्यों नहीं कह सकते विच और दैट, ये भी क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, सेकेंड और थर्ड सेंटेंस में ये भी क्या है, थर्ड और सेकेंड में भी रिलेटिव प्रोनाउन है। कहते व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ विच द सेकेंड सेंटेंस एंड व्हाट इज एंटीसीडेंट ऑफ थर्ड सेंटेंस। तो एंटीसीडेंट में बता दिया कौन होता है, देख लीजिए। इसका एंटीसीडेंट हरी हो गया, विच का विच इसका एंटीसीडेंट पेन हो गया, और दैट का एंटीसीडेंट इस बुक हो गया। तो ये नाउन ही प्रोनाउन ही तो है, सब नाउन है, ये एंटीसीडेंट हो गया, ठीक है। कोई डाउट हो तो भाई पूछ सकते हैं आप लोग। सुना, चलिए। द रिलेटिव प्रोनाउन हु हैज डिफरेंट फॉर्म ऑफ, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन की डिफरेंट फॉर्म होती है। एक्यूजेटिव केस भी होता है, जेनिटिव केस भी होता है। एक्यूजेटिव केस को ध्यान रखिएगा, एक्यूजेटिव केस को क्या बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है, मतलब सब्जेक्ट। एक्यूजेटिव केस को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, सुन लिया करिए, और इसी को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। और जो जेनेटिव केस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसी को ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो सॉरी जेनेटिव केस को पॉजेसिव कहा जाता है, सॉरी ध्यान रखिए, फिर से देखिए। नॉमिनेटिव, देखिए ध्यान रखिएगा, एक्यूजेटिव केस जो होता है उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो है इसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और जो है आपका एक जेनेटिव केस होता है, जेनेटिव केस को पॉजेसिव केस भी, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, पॉजेसिव केस कहा जाता है। एक्यूजेटिव में हुम और हु दोनों आ सकते। एक मिनट, कुछ गलत बता रहे हैं क्या, ध्यान नहीं आ रहा, एक मिनट। क्या होता है, एक होता है एक्यूजेटिव केस, और क्या एक जेनेटिव होता है, एक और होता है, बताइए उसे क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव केस एक और होता है, क्या नाम है भाई, बोलिए। भूल गए, तब तो अभी जल्दी पढ़ाए थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, भूल जा रहा है दिमाग। एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव एक और होता है ना,
سبجیکٹو کیس کو کچھ اور بولتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے بتائیے، اتنا نہیں آ رہا ہے آپ لوگ کو، کیا پڑھ رہے ہیں بھائی، دماغ میں نہیں ہے تو آپ لوگ کو بھی نہیں آ رہا ہے۔ کیا بولتے ہیں کہ جیٹی کیس، جیٹی کی جگہ اور ہوتا ہے کیس۔ دیکھنا ہی پڑے گا آپ لوگ تو، آپ لوگ اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا، کیا مطلب یاد نہیں آ رہا مجھے دماغ میں کیا پڑھتے ہیں۔ بتائے بھی تھے سب پروناؤن چیپٹر میں ہی شاید تھا، دھیان نہیں ہے چلیے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، دھیان رکھیے گا۔ نامنیٹو کے پوزیشو کے، دیکھیے دھیان، ایکوزیٹو کیس کوئی سب آبجیکٹو کیس بولا جاتا ہے۔ یہ تو غلطی ہم نے کہ کچھ غلط دھیان نہیں آیا، غلط ہو رہا تھا تو دھیان رکھیے، پھر سے سن لیجیے۔ ایک ہوتا ہے ایکوزیٹو کیس، ٹھیک نا، تو سوری، ایک ہوتا ہے نامنیٹو کیس، نامینیٹو، اور نامنیٹو کوئی سبجیکٹو کہتے ہیں، سبجیکٹو کیس، اور اس کا ایک نام ہے، کیا نام ہے؟ کیا بولتے ہیں بھائی، کیا بولتے ہیں اس کو، اسی کا ایک نام ہے بھائی، یاد نہیں آپ لوگ کو، کیا پڑھتے ہیں بھائی آپ لوگ کو، اتنا تو دھیان نہیں آ رہا میرے دماغ میں۔ کیا مطلب اینٹیسیڈنٹ، ہے کیا؟ ارے بھائی بہت نام ہے، سمپل نام ہے، دھیان نہیں ہے، کیا بولتے ہیں، سر یہی نام ہوتے ہیں۔ نہیں، نامنیٹو سبجیکٹو ایک اور کوئی نام ہوتا ہے اس کا، اور دھیان رکھیے گا۔ اور جو ہے ایک ہوتا ہے آپ کا آبجیکٹو کیس ہوتا ہے، آبجیکٹو کو کیا بولتے ہیں، ایکوزیٹو بھی بولتے ہیں، ایکوزیٹو، ٹھیک ہے، دھیان رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے پوزیسو ایڈجیکٹو، پوزیسو ایڈجیکٹو کو جینیٹیو بھی بولا جاتا ہے، جینیٹیو۔ نامنیٹو سبجیکٹ کو ایک اور نام ہوتا ہے، وہی نام نہیں یاد آ رہا، جان دیکھیے لوگ بھی نہیں بتا رہے ہیں کیا۔ چلیے دیکھیے کوئی بات نہیں ہے، اب دیکھیے ایسا نہیں ہے، ہو کا پریوگ نامنیٹو کیس میں کیا جاتا ہے، سب جینیٹو، دھیان رکھیے گا، جینیٹو کیس جو ہوتا ہے ہوج ہوتا ہے، ایکوزیٹو مطلب آبجیکٹو کیس ہوتا ہے، ہو ما ہو دونوں پریوگ ہوتا ہے، ہو کا بھی پریوگ آبجیکٹو کے روپ میں کر سکتے، سن لیجیے گا، اور ہوم کا بھی کرتے ہیں۔ ہوم کا پریوگ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، ہو کا پریوگ بہت کم ہوتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ ہو ریپلیس ہوم ان فارمل، ان فارمل انگلش میں کبھی کبھی ہو لگ جاتا ہے کنفیوژن کرانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے بہت بڑی چیز ہے، دھیان نہیں آ رہا تھا، نامنیٹو ہو گیا، جینیٹو اس کا ہوج ہو گیا، جس کا ہوج برابر پوزیسو ایڈجیکٹو بھی اس کو بولا جاتا ہے، ایکوزیٹو کو آبجیکٹو بولا جاتا ہے، ہوم بھی ہوتا ہے، ہو بھی، لیکن زیادہ سے زیادہ ہوم ہوتا ہے۔ چلیے دیکھیے، دس کہہ رہے کہ دس از دا بوائے یا گرل ہو ورک، تو دیکھیے بوائے گرل کی بات، یا بوائے کیا ہے یہاں پر سبجیکٹو کیس یوز ہوگا، ہو ورکس آر، جو کٹھن پریشرم، یا وہی لڑکا ہے جو کٹھن پریشرم، تو یہاں پہ ہو ورکس۔ اب یہاں دیکھیے یس کیوں لگا پتا ہے نا، ورک نہیں ورکس ہے، کیوں؟ کیونکہ جو ریلیٹو پروناؤن آئے گا اس کے پہلے آنے والے اینٹیسیڈنٹ کے انسار وہاں یہاں ورک سبجیکٹ لگتا سنگولر ہے۔ ہے۔ جو ریلیٹو پروناؤن آئے گا اس سے پہلے آنے والے اینٹیسیڈنٹ کے انسار یہاں ورب لگے گی۔ چلیے آگے، دس از دا بوائے ہوز ایکسرسائز، تو یہاں ایکسرسائز ناؤن ہے، اور ناؤن سے پہلے ہوج ہے تو ناؤن سے پہلے پوزیسو ایڈجیکٹو لگتا ہے نا، تو یہاں پہ ہوج کیا ہے، پوزیسو ایڈجیکٹو ہے، ارتھات جینیٹو کیس ہے، دھیان رکھیے گا۔ ہوج ایکسرسائز، جس کی ایکسرسائز، جس کی پین، اس کی ادھیکار بتا رہا ہے نا، دھیان رکھیے گا۔
اب ایکسرسائز کس کی مطلب بوائے کی ایکسرسائز, لیکن بوائے نہ لکھ کر کے ہوج لگا ہے یہاں پر, یہاں بوائے کا پوزیسو ہوج ہے, ٹھیک ہے. اب ایکسرسائز ایج کیوں لگا ہے, آپ کو پتا ہے کہ دس ہوج ایکسرسائز جو ہے سنگولر ہے, جس کی ایکسرسائز دس از دا بوائے گرل ہوم, اس ہوم اور ہوج دونوں لگا دیں گے, کیوں کہ یہاں بوائے جو یہاں پر آبجیکٹ کے روپ میں کام کر رہا ہے, ہوج آل جس کی سبھی لوگ پرشنسا کرتے ہیں, دس از دا بوائے ہوم آل پریز جن کا سبھی لوگ پرشنسا کرتے. اب یہاں پر دیکھیے دھیان رکھیے گا, یہاں آل جو ہے پروناؤن ہے, پریز کیا ہے تو ورب ہے, سر اس آل کے ان کا پریز لگا ہے, ٹھیک ہے. سر یہاں پہ اور یہاں پر ہو آنا چاہیے. نہیں ہو آل نہیں, ہوم آل پریز ہوم جس کے کو ساتھ ادھر برب آتا ہے, آل لکھا ہوا ہے نا, نہیں بھائی, آل سبجیکٹ ہے. بہت دماغ سے سمجھیے بتا دے رہے ہیں. اس میں جو ہوم ہو دونوں ہو جاتا ہے, یہ آبجیکٹو کیس ہے, یہ آبجیکٹو کیس یہاں بنایا, سبجیکٹو کیس نہیں ادھر بنایا, ہوم آنا چاہیے, کیونکہ ہوم آنا چاہیے, ہو کیوں آیا؟ کون پرشنسا کر رہا ہے, آل مطلب یہاں آل کیا ہے, آل یہاں سبجیکٹو کیس ہے, اور پریز کیا ہے, پریز جو ہے یہاں پر ورب ہے, اور اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں, جانتے کیسے, دس از دا بوائے ہوم, سنیے گا, ہوم اس طرح اس کو لکھ سکتے ہیں, جانتے کیسے, دس از دا بوائے آل پریز ہوم لکھیں گے, لاسٹ میں ہوم لگے گا, تو ہوم لگا کر ہوم برابر آل پریز ہوم, لیکن ہوم کو نیم ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ریلیٹو پروناؤن ہوا تو ہوم کو پہلے لے جاتا, تو یہ ہوم یہاں آ گیا, ارتھات کہنے کا مطلب ہے آبجیکٹ آ کر کے آپ کو پتا یہاں لگتا ہے, ٹھیک نا. اس میں جو ہے سنی آل سبجیکٹو کیس ہے, ٹھیک ہے, اور ہوم یہ آبجیکٹو کیس ہے, یہاں لگنا چاہیے اس کو, یہاں بیٹھے, پریز یہاں ورب ہے, اور یہاں پر بوائے کو آبجیکٹ بنا دیا ہے, سمجھ میں آیا, یہ چیز ہے سینٹینس اوپر والا. دیز آر دا بوائے جو اب دیکھیے یہ وہی لڑکے ہیں, تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے, آپ کو پتا ہے یہاں پر بوائز کے انسار بوائز پلورل یہاں ورک لکھا ہے, ورک نہیں لکھا ہے. اب وہی چیز کو یہاں نیچے بھی ایسے وستار کر کے لکھ دیا ہے, تینوں سینٹینس ایک ہی ہے, بس کہیں پر ڈیج لگا دیا ہے تو لگا کے اپنے حساب سے کیا ہے سینٹینس کو, بس کوئی مطلب نہیں. تو کہنے کا مطلب نہیں, یہاں پر یہ سبجیکٹو کیس ہوا ہے, اور ہوج کیا ہے, پوزیسو ایڈجیکٹو ہے, ارتھات ہوج جینٹو کیس ہے, اور یہ ہوم جو ہے, ہوم اور وہ یہ کیا ہے, یہ آبجیکٹو کیس ہے, یہ ایکوزیٹو کیس ہے, یہ سمجھا رہا ہے. کہہ رہے کہ اٹ ول بی نوٹس دا فارم آف دا سیم سنگولر, کہہ رہے کہ ہم نوٹس کر رہے ہیں کہ سنگولر اور پلورل کے سیم فارم کے لیے کیسے میسکولین فیمینین یوز کیا گیا ہے, تو وہی بتا رہا ہے کہ کیسے یوز ہوتا ہے. آگے دیکھیے, کہہ رہا ہے کہ ریلیٹو پروناؤن وچ ہیز سیم فارم آف نامیٹو, کرے کہیں کہیں ریلیٹو پروناؤن جو ہوتا ہے نامنیٹو ایکوزیٹو کا سیم فارم ہو جاتا ہے, یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ نامنیٹو ہے کہ ایکوزیٹو ہے. سمجھ میں اس کا مطلب یہ ہے نا کہ جیسے وچ نان لیونگ ہوتا ہے, تو نان لیونگ کے ساتھ ہمیشہ پتا ہے کہ کوئی چیز نان لیونگ ہوتی ہے, تو وہاں پر سبجیکٹ آپ کو پتا ہے کہ نان لیونگ ہوتا ہے, تو سبجیکٹو اور آبجیکٹو دونوں کے بیچ ہوتا ہے کہ نہیں, تو وہی کہہ رہا ہے. دیکھیے دس از دا ہاؤس وچ بلانگ ٹو مائی, تو یہ وہی گھر وچ جس سے بلانگ کرتا ہے میرے, تو یہاں پر دیکھیے فارم دا ہاؤس وچ مائی انکل بلانگ اتنی, تو یہاں پر دیکھیے ایک میں سبجیکٹو کیس یوز کیا گیا, ایک میں آبجیکٹو کیس. دس از دا ہاؤس وچ بلانگ ٹو مائی انکل, ایک سینٹینس ہو. اب دیکھیے یہاں بلانگس جو ہے ہاؤس کے انسار لگا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے, اس میں یہ دیکھیے یہاں پر جو وچ ہے ایک سبجیکٹو کیس ہے, سن لیجیے گا پہلا والے میں, اور دوسرے والے میں وچ جو ہے آبجیکٹو کیس ہے, سمجھ میں آیا نا, یہ دھیان رکھیے گا. تو کہنے کو جب نان لیونگ چیز ہوتا ہے, نرجیو ہوتا ہے, تو سبجیکٹو آبجیکٹو کے دونوں بیچ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دس کیا ہے, پروناؤن ہے, از کیا ہے, ہاؤس کیا ہے, ناؤن ہے, وچ کیا ہے, ریلیٹو پروناؤن, بلانگس کیا ہے, ورب ہے,
टू माई अंकल, अंकल नाउन है, टू प्रीपोजिशन। अब इसमें देखिए द हाउस नाउन है, विच क्या है, तो विच जो है, विच जो है आपका क्या नाम है कि रिलेटिव प्रोनाउन। आपको पता है कि जिसको क्वालिफाई करता है उसी के बगल में रखता है विच माई अंकल, विच माई अंकल बिल्ट, ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको क्वालिफाई कर रहा है इसी को, ये विशेषता होती है। कौन सा क्लास बनता है, एडजेक्टिव क्लास सब बन रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लास होता है, ध्यान रखिएगा। तो हाउ टू क्वालिफाई, जिसको क्वालिफाई कर तो, और यहाँ पर विच बिलोंग टू माई अंकल किसको क्वालिफाई कर रहा है, यह हाउस, तो यहाँ पर भी हाउस को क्वालिफाई कर, यहाँ पर भी कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है, एक में सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, एक में ऑब्जेक्टिव केस, एक में नॉमिनेटिव केस है, एक में एक्यूजेटिव केस। समझ में आया? रिलेटिव प्रोनाउन विच है नो जेनेटिव केस, ध्यान रखिए रिलेटिव प्रोनाउन का जेनेटिव केस नहीं होता है, बट अब इनका रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है विच का जेनेटिव केस नहीं होता है। जो विच वर्ड है इसका जेनेटिव नहीं, जैसे हुज होता था इसका नहीं होता है, बट हुज इज यूज सब, लेकिन ध्यान रखिएगा हुज का प्रयोग करें। जब विच है कोई नॉन लिविंग चीज है तो उसके रिलेटिव प्रोनाउन हुज का भी प्रयोग करते हैं, या तो आप विच भी लगा सकते हैं। बट यूज्ड इन यूज, सर but used but whose is used as the substitute for आप which के लिए यूज हो जाता है, करेंगे तो whose भी लगता है, आप which भी लगा सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन which का पॉजिटिव रिलेटिव क्या नाम है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। चलिए अब रहने दीजिए, कल देखते हैं, ठीक ना।